Hi friends, good morning. Let's understand audit under UK accounting term. So UK में ऑडिट कैसे होता है हम आज उसको अंडरस्टैंड करेंगे और लोग यूके में ऑडिट फिजिकली कैसे वेरीफाई करते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ऑडिट बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। वन फॉर स्टेट्यूटरी ऑडिट दैट इज फॉर लीगल रिक्वायरमेंट एंड सेकंड फॉर वॉलंटरी ऑडिट। सो जे लीगल रिक्वायरमेंट ऑडिट में हमको कंपलसरी ऑडिट करना पड़ता है और वॉलंटरी ऑडिट में हमारी ऐसी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो हमको वॉलंटरी ऑडिट करना पड़ता है। अभी ऑडिट टाइप्स ऑफ ऑडिट कौन कौन से ऑडिट है, राइट? तो ऑडिट बेसिकली थ्री टाइप्स के ऑडिट है। वन फॉर कॉन्करेंट ऑडिट दैट इज से कंटिन्यूस ऑडिट, सेकंड we can say internal audit, and third we can say final audit, right? So auditor can be two types of auditor. One we can appoint from external auditor and second we can appoint from internal auditor. So audit is type for either external audit or we can say internal audit, right? So what is an audit? ये ऑडिट क्या होता है? सो ए यूके ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू गिव एन ओपिनियन ऑन वेदर दे शोज ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्लाई विथ एप्लीकेबल स्टैंडर्ड लाइक FRS 102 और FRS 105। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू और फेयर वैल्यू अप्लाई हुआ है और FRS 102 और 105 प्रॉपर अप्लाई हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम ऑडिट अप्लाई करते हैं। सो व्हाट इज ए न्यू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम थ्रेशोल्ड राइट नाउ? सो अंडर FRS थ्रेशोल्ड लिमिट फ्रॉम 6th April 2025 is if there is FRS 1015 micro entity, then we need to meet two of three out of these conditions, like turnover we can say less than 1 million, asset we can say less than 500,000 and employees is less than 10. So out of two conditions it meet, then we can use FRS 105. Now small entity we can say FRS 102 meet 2 out of 3 conditions, that is turnover less than 15 million, assets less than 7.5 million and employees less than 50. Now medium entity say FRS 102 section 1A. Now turnover is less than 50 million. Now assets is less than 27 million and employees is less than 250. So under FRS 102 and FRS 102(1)(a there is an audit must be required, right? So this is an also a audit exemption threshold. So if below usually no audit required, right? Yani out of 3 2 is less than FRS 105, then no audit is required, right? So however there is some audit is required if shareholder demands it less than 10% of its part of a group or its regulator say financial service। यानी शेयर होल्डर की अगर डिमांड हो, अगर पार्ट ऑफ ग्रुप हो और फाइनेंशियल सर्विस हो तो ऑडिटर्स के रिक्वायरमेंट मस्ट बी होती है, यानी ऑडिट हमको करना पड़ता है। अभी ऑडिट जब हम करते हैं तो ऑडिट में क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या सैंपलिंग करना पड़ता है, क्या क्या सेक्शन होता है, इसके लिए हम अंडरस्टैंड करेंगे। यानी ऑडिट इज ए पार्ट ऑफ various sections,
यानी डिफरेंट सेक्शंस में हम ऑडिट परफॉर्म कर सकते हैं. वी कैन से लाइक एन एग्जाम्पल से सेक्शन ए फॉर अकाउंट्स, वी कैन से सेक्शन बी फॉर प्लानिंग, सेक्शन सी फॉर कंप्लीटनेस, सेक्शन डी फॉर पोस्ट बैलेंस शीट डिस्क्लोजर चेकलिस्ट, सेक्शन ई से FRS यानी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम डिस्क्लोजर चेकलिस्ट, एंड वी कैन देन परफॉर्म वन बाय वन से बैलेंस शीट लीड शेड्यूल्स one by one for Word and Excel testing. Like we can say, if we are testing for fixed asset register, then we need to ask detail FRS यानी fixed assets register, its depreciation policy, disposal listing, and in site visit whatever say currently whatever they say depreciation and say asset is available onto the site or not. Then we have to check as a FRS register. Yani we have to check audit inside visit that is whatever displayed in FR register is currently available or not. Then stock. So we can check for site visit that stock is in the say stock register, whatever available in stock register, it into the store is, and we can confirm from the external support that say what is stock in the hand, that is we need for written confirmation from the client for stock audit, right? Then debtors we need to ask sampling materiality for debtors. Then bad debt, right? Bad debt also we need external evidence for bad debt, यानी हमारे bad debt दिस ईयर्स में इतनी है, उसका हमको एक्सटर्नल सपोर्ट रिटर्न एविडेंस चाहिए. देन अदर डेटर्स प्रीपेमेंट का भी हमको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए. बैंक का भी हमको कट ऑफ टेस्ट करना पड़ता है, उसकी रिसीप्ट और पेमेंट अप टू मटीरियलिटी 90% हमको टेस्ट करना पड़ता है. देन क्रेडिटर्स का भी हमको वॉक थ्रू टेस्ट करना पड़ता है, उसका सैंपलिंग करना पड़ता है. लाइक दैट वीएटी में भी जो कैश बेस वीएटी है, अक्रूअल बेस वीएटी है. अगर वीएटी में कुछ डिफरेंस आता है, टर्नओवर एज पर वीएटी और एज पर अकाउंट्स में डिफरेंस आता है, तो उस सब का रिटर्न कंफर्मेशन हमको क्लाइंट के पास से लेना पड़ता है. देन पेरोल में भी हमको एम्प्लॉइज का वीकली, मंथली फॉर करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर्स का हमको डिटेल्स लेना पड़ता है. एक्चुअली में वो एम्प्लॉइज से कंपनी में वर्क कर रहा है, उसको पेमेंट मिल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितना है, वो सब की प्रोसेस हमको ऑडिट में पेरोल के लिए करनी पड़ती है. इसके बाद लोन आती है. लोन भी लेस देन और मोर देन 1 ईयर जो भी है, उसका हमको लोन स्टेटमेंट और रिटर्न एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए. इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्टर लोन अकाउंट. तो डायरेक्टर लोन अकाउंट भी लेस देन और मोर देन 1 ईयर जो भी होता है, उसको हमारे पास उसका भी एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, रिटर्न कंफर्मेशन चाहिए, राइट. उसके बाद शेयर कैपिटल और डिफर्ड टैक्स जो भी बैलेंस शीट आइटम है, उसका हमारे पास रिटर्न कंफर्मेशन यानी एक्सटर्नल सपोर्ट एविडेंस हमको चाहिए. अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इंटर कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर किया है, या कोई शेयर होल्डर ने डिविडेंड वेव किया है, तो हमको मिनट्स ऑफ बुक ऑफ डिविडेंड वाउचर और डिविडेंड वेवर लेटर यानी डिविडेंड जो डायरेक्टर ने नहीं लिया है, वेव किया है, उसका भी लेटर हमको चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट, राइट. फॉर जनरल टेस्टिंग वो भी जो भी जनरल हमने पोस्ट की है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी जनरल पोस्ट की है, वो करंट ईयर की और फ्यूचर ईयर की हमको परफॉर्म करनी पड़ती है, हमको उसका भी ऑडिट करना पड़ता है, राइट. एंड ऑल दिस बैलेंस शीट आइटम का और एक्सपेंस के सम ऑफ द आइटम्स का हमको एक्सटर्नल सपोर्ट चाहिए, राइट. मिनट्स ऑफ मीटिंग, राइट, अब भी हमको चाहिए, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का जो भी मिनट्स ऑफ मीटिंग है, एंगेजमेंट लेटर है, राइट. वेरियस बैंक बैलेंस शीट एंड कंफर्मेशन लेटर ऑफ बैंक्स का, राइट. बैंक का पूरा स्टेटमेंट हमको चाहिए, उसका कंफर्मेशन लेटर चाहिए, मैनेजमेंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट. थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पार्टी का डॉक्यूमेंट चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, लोन एग्रीमेंट चाहिए,
कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट का लेटर चाहिए, जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट है वो चाहिए, क्या क्या अकाउंटिंग पॉलिसी ली है वो चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए हमको ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो भी डेटा स्टैंडिंग हुआ है करंट ईयर का और फ्यूचर ईयर का, लीड शेड्यूल, वर्किंग पेपर और जो भी एडजस्टमेंट एंड जनरल हुए उस सबका सपोर्टिंग और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हमको क्लाइंट के पास से फॉर ऑडिट पर्पस के लिए चाहिए। यानी ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद हमको मटेरियलिटी सेट करनी है कि यानी कि सपोज के प्रॉफिट के हम 5% एज्यूम करते हैं, सपोज के 1 लाख प्रॉफिट है तो 5% यानी 5000 अगर हमने मटेरियलिटी सेट की है तो लेस देन 5000 जो भी आता है वो हमको मटेरियलिटी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मोर देन 5000 जो भी फ्रॉड एंड एरर आता है वो मटेरियलिटी होती है और उसका हमको डिटेल ऑडिट करना पड़ता है। यानी प्लानिंग, देन मटेरियलिटी, देन हमको सैंपलिंग करना पड़ता है, उसके बाद कट ऑफ टेस्ट करना पड़ता है, उसके बाद हमको रेफरेंसिंग करना पड़ता है, रेफरेंसिंग के बाद हमको वॉक थ्रू टेस्ट करना पड़ता है, और हमारे पास जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक्सटर्नल सपोर्ट है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब हमको इनसाइड विजिट करके फिजिकली चेक करना पड़ता है। और जो भी एरर है या एडजस्टेड एरर है या अनएडजस्टेड एरर है वो हमारे ऑडिट रिपोर्ट में हमको दिखानी पड़ती है, परफॉर्म करनी पड़ती है। तो ये तो सिर्फ हमारा प्लानिंग और वह क्या क्या हमको चेक करना पड़ता है वो हमने बताया। अभी हम उसका डिटेल कैसे चेक करेंगे हम आपको ये बताते हैं, राइट। सो देयर आर सम आईसा यानी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी यानी आईसा 300 यानी व्हाट इज ऑडिट प्लानिंग। तो ऑडिट प्लानिंग वैसे ISA 300 वी कैन सेक्शन ISA 300। सो ऑडिट प्लानिंग में क्या होता है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस यानी बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ता है प्लानिंग में। आइडेंटिफाई द रिस्क, फ्रॉड एंड एरर यानी रिस्क को हमको आइडेंटिफाई करना है, मटेरियलिटी सेट करनी पड़ती है, उसके बाद डिजाइन एंड ऑडिट स्ट्रेटजी हमको डिजाइन करनी पड़ती है, एंड देन उसके बाद हमको टीम एंड रिसोर्स एलोकेट करना पड़ता है, राइट। तो ISA 300 में हमको ऑडिट प्लान करना पड़ता है। इसके बाद हमको मटेरियलिटी सेट करनी पड़ती है। मटेरियलिटी सेट करने के लिए ISA सेक्शन 320 हमको मटेरियलिटी सेट करनी पड़ती है। मटेरियलिटी means one type of limit that is called materiality. So materiality is the threshold above which errors matter. यानी हमने जो भी threshold परफॉर्म किया है उसके अबव जाता है तो वो materiality मैटर करती है। Suppose we can say example 5% of profit before tax that we have set a materiality, say 1 or 2% of revenue, 1% of total asset, right? That is what you have referred to as a limit, as a determined, right? So what to test and how much test to be needed. So like say profit before tax is 1 lakh and materiality 5% say 5,000. So if error is less than 5,000 usually ignored, and if error is more than 5,000 must be investigated, right? यानी that is called materiality। यानी उसके बाद क्या आता है, तो हमारा आता है सैम्पलिंग। ऑडिट का सैम्पलिंग करना पड़ता है। अंडर सेक्शन ISA 530 वी हैव टू परफॉर्म ऑडिट सैम्पलिंग, राइट। तो ऑडिटर्स डोंट चेक एवरीथिंग, ऑडिटर पूरा नहीं चेक करता है। दे यूज सैम्पलिंग अंडर ISA 530 यानी ISA 530 वो सैम्पलिंग डिसाइड करता है, उसके बाद वो सैंपल चेक करता है। सो दे चेक सैम्पलिंग एज पर मटेरियलिटी टेस्ट। सो एज पर मटेरियलिटी टेस्ट जो भी होता है उसका वो सैम्पलिंग करता है। यानी टाइप ऑफ सैम्पलिंग कितने टाइप्स का होता है तो ये हम डिसाइड करेंगे। तो 1 फॉर रैंडम सैम्पलिंग यानी रैंडम सैम्पलिंग यानी वी कैन से एवरी sampling out of say 1000 sample we need to sample 30 invoice from different customers।
यानी अलग अलग कस्टमर्स के हमको 30 सैंपल हम डिसाइड करेंगे रैंडम सैंपलिंग और उसका हम सैंपलिंग चेक करेंगे। दूसरा होता है सिस्टेमेटिक सैंपलिंग, थर्ड होता है जजमेंटल सैंपलिंग एंड फोर्थ होता है मॉनिटरी यूनिट सैंपलिंग, राइट। सो सैंपलिंग में क्या हम डिसाइड करते हैं, तो 1 फॉर डिफाइन वैल्यू हम डिफाइन करते हैं। सेकंड फॉर सेट सैंपल साइज, सैंपल की साइज हम डिसाइड करते हैं। थर्ड फॉर सिलेक्ट सैंपल, यानी सैंपल सिलेक्ट करते हैं अप टू मटीरियलिटी लेवल। फोर्थ टेस्ट, उसका टेस्ट करते हैं। और फिफ्थ इवेल्युएट रिजल्ट, यानी लास्ट में हम उसका रिजल्ट का इवेल्युएशन करते हैं, राइट। तो सैंपल साइज डिपेंड्स ऑन, सैंपल साइज किस पे डिपेंड होती है, तो इट डिपेंड्स ऑन रिस्क लेवल, यानी रिस्क लेवल होता है उस पर डिपेंड होता है। सेकंड मटीरियलिटी पे भी डिपेंड होता है। और थर्ड पॉपुलेशन साइज, जो पॉपुलेशन साइज होता है उस पे भी सैंपलिंग सिलेक्ट होता है, राइट। उसके बाद क्या आता है, तो ऑडिट एविडेंस। सो ISA 500 एंड रेफरेंसिंग ISA 230, यानी एविडेंस एंड रेफरेंसिंग ISA 500 and ISA 230 we have to give evidence and referencing, right। तो रेफरेंसिंग, यानी रेफरेंसिंग हम किसको देते हैं, तो शेड्यूलिंग एंड वर्किंग पेपर को हम रेफरेंस देते हैं। तो रेफरेंस हम कैसे देते हैं, तो ईच डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल सपोर्ट गेट ए कोड, यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, यानी बैलेंस शीट होती है उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है, एक्सटर्नल सपोर्ट होता है, सब सपोर्ट होता है, उसको हम रेफरेंसिंग ऑन एंड कोड देंगे। यानी A1, B2, A1.A, B2.2, A1.3 लाइक सेम, राइट। एंड देन आफ्टर वी क्रॉस रेफरेंसिंग बिटवीन ट्रायल बैलेंस, लेट शेड्यूल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सटर्नल एविडेंस। यानी हम पहले ट्रायल बैलेंस को रेफरेंसिंग करेंगे, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसको हम क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे, राइट। सो उसके बाद आता है हमारा ऑडिट ओपिनियन, यानी ऑडिटर का ओपिनियन क्या होता है, फाइनल आउटपुट क्या होता है। तो ISA 700, यानी ISA 700 में ऑडिट ओपिनियन ऑडिटर्स कितने टाइप्स के देते हैं, तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन, राइट। और उसका मीनिंग क्या होता है, तो पहला होता है अनक्वालिफाइड, यानी अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मीनिंग होता है क्लीन। सेकंड होता है क्वालिफाइड, उसका मीनिंग होता है माइनर इश्यू, यानी थोड़ा इश्यू है। थर्ड होता है एडवर्स, यानी मेजर प्रॉब्लम, यानी ऑडिट में मेजर प्रॉब्लम है। और फोर्थ होता है डिस्क्लेमर, यानी नो ओपिनियन। These 4 type of audit opinion while perform the auditor during the audit, right। अब होता है टेस्ट। उसके बाद टेस्ट में क्या होता है, ऑडिट ओपिनियन करता है, लेकिन टेस्ट सपोज के डॉक्यूमेंट्स का हमने टेस्टिंग किया है, तो टेस्ट में क्या होता है कि सपोज के टेस्ट हमने किसी का भी किया और रिजल्ट क्या होता है, तो बैंक कंफर्मेशन, यहाँ के बैंक कंफर्मेशन क्या हुआ, तो क्या अग्रीड, तो कि यस। बैंक रिकंसिलिएशन वेरीफाइड, तो कि यस। कट ऑफ टेस्टिंग किया है, ओके, तो कि यस। यानी दिस टाइप ऑफ हमको रिजल्ट परफॉर्म करना पड़ता है। अग्रीड, वेरीफाइड, ओके, यानी टिक मार्क करना पड़ता है कि यानी बैंक कंफर्मेशन हमने अग्रीड किया है, उसका रिकंसिलिएशन हमने वेरीफाइड किया है, कट ऑफ टेस्ट हमने किया है, फिजिकली किया है, इनसाइट किया है, लेजर पे किया है, वो सब हमको परफॉर्म करना पड़ता है। और वर्ड डॉक्यूमेंट्स में हमको रिटर्न में बताना पड़ता है, राइट। अभी एसर्टन क्या होता है, तो एसर्टन ISA 315, एसर्टन का मीनिंग ऐसा होता है कि जो एसर्टन और मीनिंग, यानी उसका एक्सिस्टेंस क्या है, अभी वो एसेट है, उसका अस्तित्व क्या है, वो हमको देखना पड़ता है, राइट। तो एसर्टन ISA 315 वी हैव टू परफॉर्म एस बिलो। सपोज ओकरेंस यानी ट्रांजेक्शन हैपन, तो ट्रांजेक्शन जो हुआ है उसका ओकरेंस यानी हैपन हुआ है। सेकंड कंप्लीटनेस, तो कंप्लीटनेस का मीनिंग होता है नथिंग मिस, यानी कुछ भी मिस नहीं हुआ है। थर्ड एक्यूरेसी का मीनिंग होता है करेक्ट अमाउंट, यानी अमाउंट करेक्टली रिकॉर्ड हुआ है। फोर्थ होता है कट ऑफ टेस्ट यानी करेक्ट पीरियड का कट ऑफ टेस्ट रिकॉर्ड हुआ है।
फिफ्थ होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी प्रॉपर अकाउंट हुआ है। उसके बाद होता है एक्सिस्टेंट यानी एसेट एक्सिस्ट हुआ है। उसके बाद आता है वैल्यूएशन यानी करेक्ट वैल्यू रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। ये सब एसेट टेस्ट होता है। वो सब भी हमको फिजिकली वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लिख के हमको क्लाइंट को देना पड़ता है एज ए ऑडिटर। अभी हम बोलेंगे कि यार ये कट ऑफ टेस्ट क्या होता है। हमने तो ऑडिट किया, सैंपलिंग किया, प्लानिंग किया, मटेरियलिटी किया, लेकिन कट ऑफ टेस्ट वो हमारे समझ में नहीं आया है। तो ISA 315 एंड 330 कट ऑफ टेस्ट होता है। तो पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट ऑफ टेस्ट। सो कट ऑफ टेस्टिंग इज एन ऑडिट प्रोसीजर used to check that transactions are recorded in the correct accounting period right before और after the year end। यानी कि जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है वो बिफोर द ईयर एंड एंड आफ्टर द ईयर एंड राइटली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, उसका हम कट ऑफ टेस्ट कहते हैं। कट ऑफ टेस्ट 5 ट्रांजेक्शन फॉर एंड ऑफ द ईयर एंड फॉर करंट ईयर एंड 5 ट्रांजेक्शन स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड फॉर फ्यूचर ईयर का हमको चेक करना पड़ता है, राइट। से सिलेक्ट 5 कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन फॉर करंट ईयर एंड सिलेक्ट 5 कंटिन्यूस ट्रांजेक्शन फॉर फ्यूचर ईयर्स इज कॉल्ड कट ऑफ टेस्ट। सो कट ऑफ टेस्ट मीन्स राइट टाइम रिकॉर्डिंग। जो रिकॉर्ड हुआ है राइट टाइम हुआ है, तो वो कैसे समझेंगे, चलो उसको भी हम समझ लेते हैं। सो वाई कट ऑफ टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। कट ऑफ टेस्ट इज क्यों इम्पोर्टेंट होता है? बिकॉज कंपनीज में ओवरस्टेट रेवेन्यू टू इंक्रीज प्रॉफिट, यानी कि ज्यादा रेवेन्यू बताता है तो इंक्रीज प्रॉफिट ज्यादा बताने के लिए प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू ज्यादा बताता है। और अंडरस्टेट एक्सपेंस यानी एक्सपेंस कम बताते हैं। इट इफेक्ट्स प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन, यानी अगर हमने ओवरस्टेट रेवेन्यू बताया या अंडरस्टेट एक्सपेंस बताया तो हमारा प्रॉफिट और फाइनेंशियल पोजीशन में उसका अफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रॉफिट यानी बढ़ेगा यानी घटेगा, राइट। सो इसीलिए हमको कट ऑफ टेस्टिंग करना पड़ता है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट। लाइक ईयर एंड इज 31 मार्च, यानी मार्च एंडिंग ईयर एंड है, राइट। तो हम सेल्स का कट ऑफ टेस्ट अगर हम करते हैं तो गुड डिस्पैच ऑन 31 मार्च, यानी गुड हमने डिस्पैच किया है 31 मार्च, तो इट शुड बी रिकॉर्डेड दिस ईयर एंड नॉट नेक्स्ट ईयर एंड, राइट। एंड इफ गुड इज डिस्पैच ऑन 2nd of April, then it should be recorded in next year end, right. If company records April sale in March, then we can say it